Good evening, everybody, and welcome to Ahmedabad Management Association. I am Padmin Buch, and I have got a pleasant duty to coordinate this particular open forum program today. Today's subject is very important. We are just having a freewheeling discussion in the boardroom. Herbal products. India is one of the leading country in terms of biodiversity, if you know. Biodiversity is the kind of medicinal and aromatic plants which are being cultivated in India. In fact, Gujarat itself, if you go to Dang, there is a treasure of medicinal and aromatic plants. Jharkhand, Chhattisgarh, part of the West Bengal are the places where you get a huge variety of medicinal and herbal plants, and the world is going for herbal products now, as we know. Products which have a natural origin rather than synthetic origin. But are we really exploiting, are we really making use of our base in herbal or not? Hundreds and thousands of products are available, but are they really complying to the standards? And that is why, do we really capitalize on the opportunities in the export market or not? We have got an excellent combination of the speakers today. Ankit Bhai is one of the expert in the field of international business, exports and imports, regular to Ahmedabad Management Association. He has been kind enough to share his knowledge, expertise, and giving tips in the field of international business. Madam, she is a startup outside. She is an entrepreneur. In fact, she is a woman entrepreneur. Sai Sudha Chebrolu, right? She has her own unit in the field of herbal in Anand. She is from the Andhra Pradesh, worked for long years in Odisha, but set up her unit in Gujarat. So we are happy that you are here in Gujarat. Before I introduce both of the speakers, I will just take 1 or 2 minutes time. Ankit Bhai is of course going to give us the data and give us an overview of the market, and she will be doing some kind of experience sharing because she actually runs the herbal unit. When we say export opportunities in herbal, Ankit Bhai will know better, but we are missing out the greater part of the opportunity. Our herbal products, many of our herbal products are being sold as a food supplement in the countries like USA, UK, and kind of, because they have not gone through the testing of drugs or pharmaceutical or medicines. Difference is that we are missing out the value addition. Isabgol, જેને સીલેમ હર્સ કહેવામાં આવે, ઇસબગુલ ઇન્ડિયા અને એમાં પાર્ટિક્યુલર ગુજરાત એક્સપોર્ટ 70-80% ઓફ ધ વર્લ્ડ્સ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ઇસબગુલ. આપણે ઇસબગુલ રો ફોર્મમાં એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ. વી આર એક્સપોર્ટિંગ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધ રો ફોર્મ ઓર સેમી ફિનિશ ગુડ. ઇટ ગેટ્સ કન્વર્ટેડ ઇન ફાઇનલ પ્રોડક્ટ and they make money. Why we are not doing that? Castor oil. Again, we are saying Gujarat is the largest producer. 70-80% of the world's requirement of castor oil, and castor oil is a huge properties. Is Gujarat supplies to some extent Andhra Pradesh. Again, we are exporting in the form of raw form, semi-processed form, gets converted into the derivatives, technical derivatives, and there is a value addition of 100%, 200%, 500%. A derivative called nylon 6 or nylon 6 is made from castor oil. France makes it, Japan makes it. The castor oil and castor seeds are from Gujarat. There are so many examples of such. I think there is awareness. People are working on it. I hope that it will speed up. But that is why I am happy that this is a start. I request Ankit Bhai and that maybe we can have one more program on this later on, maybe after 6 months or 1 year. We need to work on this, and here they are also working. Chaos or people are working. We need to work on this product kind of thing. We need to make sure the people who cultivate, they get better money. The farmers should get better money. They will get better money if the product made out of that gets better money. It is a both way. It's a chain. It comes backward. So that's why I have a pleasant duty to introduce both of the speakers. Both have a huge kind of learning value for us, but they have been modest to give a brief profile only. Mr. Ankit Majmudar, founder of Global Business Solutions. He provides international business consulting to startups and MSMEs, and also helps in market selection, finding buyers, suppliers, and managing export-import activities. He specializes in heavy machinery, range of engineering products, home furnishings, ceramics, tiles, chemicals,
and other industries, and also travel extensively over 20 plus countries. Naturally, he is bound to be there. With expertise in B2C and B2B, if you know that business, to customers and business to business models. Mr. Majmudar manages pre-shipment and post-shipment export activities and also mentors entrepreneurs through various institutions like our own Ahmedabad Management Association, MSME, IIEM and MBA programs. Academically, he is an MBA in marketing and a holder of Master of Commerce degree. Ankit Bhai also serves as a guest faculty in various reputed MBA institutions. Welcome. Okay. Ms. Sai Sudha Chebrolu. She is a lady entrepreneur. Academically, she is postgraduate in mass media and communication and hails from Anand, Gujarat. She has started Bilvam Jagannatha Herbals Private Limited in the field of medicinal and aromatic plants with the aim to establish Ayurveda as a prominent healthcare system in India and other countries. Her passion for healthcare system, her passion for natural healing and traditional practices drove her to educate and inspire others about the profound value of Mother Nature and the medicinal potency they carry. Madam has worked with women and children, particularly in Odisha. She has worked for almost 15 years, right? In Odisha, government departments, various development agencies and NGOs on various health issues and the influencing sisters, nutrition and wash, livelihood and agriculture patterns in the context of women farmers. A new path, something different. She has worked with several government departments as well as UNICEF as also. So we, as I said, we have got an excellent combination of the speakers to talk about the right kind of topic, export opportunities in herbal and Ayush products. Ayush, by the way, if you know, Ayush is a nomenclature coined a few years back. There is a department called Ayush at the Government of India. It's a full-fledged department. And it is one of the best things which to happen, because otherwise it was combined with other branches. Ayush is a dedicated full-fledged department, and the Ayush is actually abbreviation. Ayush comes from Ayurvedic, Unani, Siddha and homeopathy. What we call alternative medicines other than allopathy. Both paths of medicine, let me tell you, both paths of medicines are equally good. We should never ever go into this is better or this is not good. Both are good. But we need to promote Ayush more because we have an excellent base in India's excellent base in Ayush product. And that's what they are going to talk about. Thank you so much. Ankit bhai, you will be the first thing, okay, right? Thank you so much. Sorry. I have to give the fully Gucci to her, madam. Good evening, friends. So आज हम बात करेंगे आयुष प्रोडक्ट्स पे, जैसे सर ने बताया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए और कौन से प्रोडक्ट्स पे हमको गौर करना चाहिए. प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगा. स्टैटिस्टिक्स थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या पोटेंशियल है कौन से प्रोडक्ट्स में. इसके बाद हम देखेंगे कौन से मार्केट्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे इफ यू आर गोइंग विद दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये दो तीन चीज पे बात करेंगे. आयुष, जैसे सर ने बताया कि दैट इज एन प्रमोशन काउंसिल बाय द गवर्नमेंट फॉर द एक्सपोर्टर्स, जो हमको काफी तरह की इंफॉर्मेशन मुआयना कराती है और बाकी तरह की हेल्प करती है, असिस्ट करती है कुछ चीजों में. उस पर थोड़ा गौर करेंगे. थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे बात करेंगे. मैं यहाँ पे दो तीन वेबसाइट यहाँ पे प्रैक्टिकली बताऊंगा हाउ यू फाइंड द मार्केट्स फॉर योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स. सो ये तीन चार चीज पे गौर करेंगे, प्रैक्टिकल वेबसाइट दिखाऊंगा. एंड देन मिस साई सुधा विल बी टॉकिंग अबाउट हर जर्नी की. पहले पोर्शन में बात करेंगे कि आपको मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता कौन सा है, ये उस पे बात करेंगे कि ये वही रास्ते पे चल चुके हैं. तो शी वुड बी शेयरिंग हर ओन एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा शेयर करेंगे कि उनको क्या क्या चैलेंजेस है इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन या प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एंड हाउ शी ओवरकेम विद ऑल दोस ऑब्स्टेकल्स एंड देन सक्सीडेड. उनकी वेबसाइट भी है तो शी कैन ऑल्सो थ्रो सम लाइट ऑन कि कैसे वेबसाइट होनी चाहिए आइडियली, पैकेजिंग पे कैसे ध्यान रखोगे. तो ये चार पांच चीजों पे हम थोड़ा गौर करेंगे. इट विल बी ब्रीफ सेशन फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर. वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस एज सर हैज सेड. सो लेट अस बिगिन. ये देखें, सबसे पहले ग्रोथ. आई विल बी टॉकिंग ऑन मैक्रो लेवल. मैं मैक्रो लेवल से होके माइक्रो लेवल पे आऊंगा. इंडिया क्या कर रहा है, दुनिया क्या कर रही है, हम क्या कर सकते हैं. एंड देन मिस साई सुधा विल बी टेकिंग ऑल टुगेदर माइक्रो लेवल कि हम क्या कर चुके हैं, कैसे कर सकते हैं उसको, राइट.
सो पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो यू कैन सी दी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दैट इज 26, 13, 3 एंड 4%. सो कोविड का टाइम यहां पे देखो 21, 22, 20, 21, 26% तक इंक्रीज हुआ है इंडिया का एक्सपोर्ट आयुष प्रोडक्ट्स का, राइट. सो यहां पे लास्ट ईयर का आप देखोगे तो 4% से ग्रो हो रहा है. सो नॉन एवरेज आप पकड़ के चले थे 5 to 7% का एनुअल ग्रोथ CAGR पकड़ के चलते हैं. सो नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स 28, 29 तक यही एक रहेगा 7 to 8% के अराउंड बढ़ना चाहिए. दिस इज व्हाट वी बिलीव एंड दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज बिलीविंग एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग ये सब एक्टिविटीज कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हैं. सो करंट इट इज $651 million, करीबन 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इंडिया से लास्ट ईयर हुआ है, which will be by this year end 24 FY it would be touching 6,000 crore. This is more or less ऐसा बिलीव करते हैं. इंडियन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इतना 5 या 5,500 करोड़ का होता है हर साल. इसके बावजूद इंडिया का ग्लोबल आयुष प्रोडक्ट्स का जो शेयर है दैट इज ओनली 2%. कोइंसिडेंटली इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड का टोटल एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन इज 2%, सब प्रोडक्ट्स मिला के, एंड दैट इवन गोज वेल विद आयुष प्रोडक्ट. सो अगर $100 का आयुष प्रोडक्ट कहीं पे भी दुनिया में बिकता है पूरे साल में, इंडिया उसमें सिर्फ महज 2% कंट्रीब्यूशन है. इतनी पोटेंशियल होने के बावजूद. सो यहां पे वो गैप काफी है. इसलिए ग्रो करने की एक पोटेंशियल वो जगह है अपने लिए फॉर इंडिया एंड एट माइक्रो लेवल, एट आवर लेवल, एंटरप्रेन्योर्स लेवल, राइट. ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जिसको बोलते हैं, जिनशिंग वगैरह का जो मेडिसिन हो गया, उनका कंट्रीब्यूशन करीबन रहता है वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन 13%. सो हम लोग मानते हैं कि आयुर्वेदा इंडिया से आया है, आयुष प्रोडक्ट इंडिया से हैं, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल स्टैटिस्टिक्स ट्रेड, देन चाइना इज फार better than what we are doing, unfortunately, in spite of having so much resources अपने पास. So there is a huge potential to grow. India is largest producer of Ayurvedic ingredients like turmeric, garlic and aloe vera. So हम लोग क्या करते हैं, जैसे श्री पद्मिन भाई ने अभी बताया कि हम लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ रॉ मटेरियल या उसका आजू बाजू के इंग्रेडिएंट्स में ही रह जाता है. हम लोग कभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे नहीं जाते. सो वी विल बिफोर दिस सेशन वी वर जस्ट शेयरिंग कि पोटैटो का आप एक्सपोर्ट देखोगे, इंडिया का फ्रेश पोटैटोस फ्रॉम इंडिया पूरे साल में एक्सपोर्ट इज ओनली 7 CR. और हम लोग पीछे पड़े, पोटैटो बेचो, नहीं होगा यार. पोटैटो चिप्स में आओगे 1400 CR का एक्सपोर्ट है इंडिया से. एक थोड़ा सा छोटा सा मशीन लाके वैल्यू एडिशन तूने चिप्स बना के दे दिया, 1400 करोड़ का एक्सपोर्ट इज है. ह्यूज वॉल्यूम एंड ह्यूज प्राइस मार्जिन. द गेम चेंजर यही है. हम लोग रॉ मटेरियल को छोड़ के जब तक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये कंट्रीब्यूशन यही रहेगा, इवन एट माइक्रो लेवल एंड हेंस एट मैक्रो लेवल. The game lies here. The understanding should be कि मैं ऐसा कुछ, मैं डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट कैसे बना सकता हूँ. मैंगो कर रहे हैं यार, 2 महीने मैंगो, केसर मैंगो, यार मैंगो पल्प में कुछ करो यार, मैंगो स्क्वाश में कुछ करो, मैंगो जूस में कुछ कर सकते हो. एंड दिस इज गोइंग टू हिट रियली वेल. अगर सोच इस तरह की होगी तो प्रोडक्ट्स भी उस तरह के निकलेंगे, मार्केट भी उस तरह के डेवलप होंगे, राइट. सो ये उद्यम पोर्टल जो हम लोग अभी यहाँ बात करते हैं, सो देयर आर अराउंड 53,000 MSMEs रजिस्टर्ड विद दिस काइंड ऑफ आयुष सेक्टर. बहुत सारी MSMEs हैं, 3 लाख 4 लाख के तादाद में, उसमें से 53,000 एक्सक्लूसिवली आयुष पे काम करती है. सो लोग जागरूक हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं ये फील्ड से, बिकॉज उनको वो ट्रेड दिख रहा है, वो पोटेंशियल दिख रहा है, वो बिजनेस दिख रहा है, राइट. गुजरात हैज अबाउट 850 आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड दैट 1 unit इज ऑफ मिस साई सुधा, राइट. सो ये लोग हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंडिया की ओर कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, राइट. एंड देन आफ्टर गुजरात रैंक्स 4th state wise after Uttar Pradesh, Kerala and Maharashtra. So as a state we have potential. Being an entrepreneur place we have that potential. The only game lies in thinking, in changing the mindset. यार मैं उसमें कुछ क्या कर सकता हूँ, मेरे लेवल पे क्या सकता हूँ. Forget about Gujarat, forget about India. वो है, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो होना ही है. हम अपने लेवल पे क्या कुछ कर सकते हैं. Quickly coming to the markets. टॉप 10 मार्केट्स कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड एनी एनालिसिस, यहां पे लिए हुई है मैंने. सो यूएस इज द लार्जेस्ट मार्केट विद 1500 CR. इंडिया से जो जाता है वो, राइट.
So at least 183 million. Germany, Italy, China, UAE, France, this top 10 countries are there. Most of them are European countries and necessarily in developed nations. क्योंकि आप एक चीज समझे लॉजिक, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं. फूड सप्लीमेंट्स पहले बंदा फूड खाएगा, सप्लीमेंट्स उसके साथ आएगा. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जहां फूड के क्राइसिस हैं, जहां पे खाने के वादे हैं, वहां पे सप्लीमेंट्स नहीं बेच पाओगे आप. एंड दैट इज नॉट परहैप्स द ग्रेट मार्केट. आई वोंट से कि बिजनेस नहीं होना है, बट लॉजिकली दैट शुड नॉट बी द मार्केट यू शुड फोकस अपॉन. तो ये मार्केट्स हैं जहां पे डेवलप्ड नेशन, जहां पे उनको पता है कि यार हेल्थ केयर क्या है, वेलनेस प्रोडक्ट्स क्या है, सप्लीमेंट्स क्या है, प्रोटीन का डेरिवेटिव्स क्या है, तो वहां पे ये सब चीजों ज्यादा बिकनी पोटेंशियल है. राइट, मैंने यहाँ पे आपको सब सेक्टर्स भी दिया हुआ है. देयर आर एटलीस्ट 6-7 सेक्टर्स जहां पे आयुष में फिर अलग अलग सेक्टर्स है. देयर इज हर्बल प्लांट्स, अनदर इज न्यूट्रास्यूटिकल. उसका कंट्रीब्यूशन देखें, सो अगर 100 किलो या 100 रुपया, $100 का इंडिया पूरे जहां में पूरे साल में कुछ बेचता है, सो उसमें से हर्बल प्लांट का कंट्रीब्यूशन इज 43%. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली परमीन भाई वी वर डिस्कसिंग कि प्लांट एक्सट्रैक्ट्स में से कुछ कर सकता है क्या, या गिलोय में से कुछ कर सकते हो क्या. देन इट वुड बी गेम चेंजिंग काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल. फार्मास्यूटिकल का सब कैटेगरी है, कॉस्मेस्यूटिकल्स. अभी ये क्या हो गया, ये कोई कॉकटेल नाम है नहीं है. कॉस्मेस्यूटिकल्स है, कॉस्मेटिक्स अलग है, कॉस्मेस्यूटिकल्स अलग है. कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर नेसेसरी ए टेम्पररी फिनोमिना विच इज बेसिकली कि आपका जो भी फॉर एन एग्जांपल पिंपल है तो पिंपल को वो ढक देगा. कॉस्मेस्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट्स है वो पिंपल्स को क्योर करेगा. एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म फिनोमेना, एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना. दिस इज ह्यूज डिफरेंस. खाली वर्ड सुनने में और देखने में एक से लगते हैं, लेकिन बहुत तफावत है दोनों में. उसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 10%. देन प्लांट डेरिवेटिव्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जो हम लोग बात कर रहे थे. सो अपार्ट फ्रॉम दिस 10 कंट्रीज, अनदर की पोटेंशियल्स फॉर इंडिया वुड बी फिलीपींस, केनिया, वियतनाम एंड जापान. ये 4 कंट्रीज में कुछ कर सकते हो. सो वी हैव मोटा मोटा 14 कंट्रीज टू फोकस अपॉन. अब ये 14 कंट्रीज में तुमको कांटेक्ट करना है, बायर्स को ढूंढना है, आयुष के पहले मेंबर बन जाना है, एंड देन यू गेट इनटू दोस काइंड ऑफ एक्शन. ये देखें कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं. राइट, सो दिस इज बेसिकली ग्लोबल हर्बल मार्केट है. वो कंप्राइजेस ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जिसे एमएपीज बोलते हैं हम लोग. हर्बल मेडिसिन, एक्सट्रैक्ट्स, प्लांट डेरिवेटिव्स, जो आगे के जो 5 सेगमेंट दिखे थे वही है. नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म्स भी मैंने दिए हुए हैं. Right, so it can be in tablet form, it can be in powder form, it can be in capsule form, gel हो गया, आपका आई ड्रॉप्स हो गया, नेजल ड्रॉप्स हो गया, बॉडी लोशंस हो गया. ये सब कॉस्मेटिक्स भी है, कॉस्मेस्यूटिकल्स भी है और सप्लीमेंट्स भी है. सो आप मैडम की वेबसाइट जब देखोगे तो यू विल हैव वेरियस फॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. कि पैरासीटामोल पाउडर में भी है, सिरप में भी है, उस टैबलेट में भी है, तो उनके भी प्रोडक्ट्स अलग अलग फॉर्म्स में. राइट, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट रिक्वायरमेंट क्या है. सो वो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल कराना यही है कि सामने वाला मार्केट उसको इजीली चीजों को एक्सेप्ट कर सके. बिगेस्ट हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. हमने ओवरऑल प्रोडक्ट की बात की, हमने 10 मार्केट दिखा दिए. अब हम सीधा प्रोडक्ट की बात करें. सबसे पहले अश्वगंधा. अश्वगंधा इज जिनसिंग ऑफ इंडिया, है ना. सो अश्वगंधा का एक्सपोर्ट्स पिछले 6 साल में 8 टाइम से बढ़ा है. सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं. आयुष में 5 कैटेगरी, 5 में से और 2500 प्रोडक्ट, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, अश्वगंधा. तुलसी हो गया, ब्राह्मी हो गया, शतावरी, गिलोय हो गया, टर्मरिक, जिंजर, ये सब देयर की प्रोडक्ट्स विच यू कैन परहैप्स फोकस अपॉन. जो लोग इस फील्ड में हैं उनको आइडिया रहेगा कि मुझे ये करना है या नहीं करना है. जो लोग नए हैं उनको एक एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क मिलेगा मुझे किस में जाना चाहिए, आइडियली पोटेंशियल किस में. एसेंशियल्स ऑयल्स हो गया इन द फॉर्म ऑफ सैंडलवुड, बेसिल, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स. स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, हेयर मास्क हो गया, फेस टोनर हो गया, मास्क सीरम्स हो गए, हेयर ऑयल हो गए. हेल्थ सप्लीमेंट्स में आपका च्यवनप्राश आ गया, अश्वगंधा हर्बल टी आ गया. सो ये सब प्रोडक्ट्स, सब प्रोडक्ट्स कैटेगरी मैंने आपको दिखाई ताकि आपको एक पता चले कि किस हिसाब से ये चीजें चलती हैं. और इंडिया में बैठे हैं तो इंडिया से क्या चीजों की पोटेंशियल है, कौन से मार्केट्स में. अच्छा, ये सब हो गया. गवर्नमेंट, मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे कैसे सपोर्ट करती है. तो इन्होंने सबसे पहले एक आयुष करके एक ओपन किया है, विच इज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, विच इज मैंडेटरी इफ यू आर गेटिंग इनटू एक्सपोर्ट्स. क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स करना है तो रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, विच यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन आयुष. तो देयर आर अराउंड 28-29 गवर्नमेंट मशीनरीज विच हेल्प्स आउट एक्सपोर्टर्स. तो आयुर्वेदिक, जैसे पद्मिनी मैंने बताया कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धि मेडिसिन हो गया, ये सब आयुष में कवर होता है. तो आपको इसके मेंबर बनने, मेंबरशिप फीस मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा. इट इज नॉट मोर देन 5, 7,000, 10,000, 11,000.
आप उसके मेंबर बन गए, वैलिडिटी इज फॉर 1 ईयर, एवरी उसको रिन्यू कराना है और उसमें आपको काफी बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स भी यहां पे दिखा दूंगा। So first is ये है, another is government has allowed 100% FDI. This is not for us, but it is for foreign investors who would like to invest something over here. जिनके पास जमीन पड़ी है, वो बोलते हैं कि मेरे पास आयुर्वेदिक का बेसिक कोर है, मुझे प्रोडक्ट कैसे प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ा है, वो सब पड़ा है, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं, तो गो फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। FDI यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आपका जमीन पे आप अपने बंदे को काम लगाओगे, मशीन्स लगाओगे और उसको पैक करके बेचोगे बाहर। So that is also another way of getting into this particular field. ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में ये लोग हेल्प करते हैं, देयर आर रोड शोज, देयर आर B2B मीटिंग्स, देयर आर डेलीगेट्स बुलाते हैं यहाँ पे कुछ कंट्रीज से, अफ्रीका से आ गए, इस केस में तो इट वुड बी मोर फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस अदर देन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सपोर्ट इन इंटरनेशनल प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई, जैसे सर्टिफिकेशंस का आपको पता नहीं है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार मिडिल ईस्ट में बेचना है, यार ये प्रोडक्ट्स में बेचूंगा तो मेरे को हलाल सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, वी डोंट नो, सो देन आस्क दिस आयुष, sir, we are member, we are paying a membership fees, so is it mandatory to get halal certificate or it is okay? US में जाना है, US FDA is mandatory? No, क्योंकि pharmaceutical products के लिए FDA is mandatory, herbal products is basically supplements, food supplement, and hence US FDA is not mandatory. This is what we believe, right? सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल वो हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कुछ करीबन MOU साइन किए कुछ कंट्रीज से, सो जहां पे हम लोग ये प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं इजीली। हाउ टू फाइंड पोटेंशियल मार्केट्स पे थोड़ा बात करूंगा, इंपोर्ट ड्यूटी शायद हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम कम है, लेकिन आयुष का जो वेबसाइट है मैं आपको दिखाता हूं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो मैं यहां पे मेंबरशिप की बात कर रहा था, दिस इज आयुष, इज गवर्नमेंट मशीनरी, इट इज बेसिकली नोन एज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसको शॉर्ट फॉर्म आयुष एक्सेल कर दिया है। सो ये इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखो ट्रेड फेयर आ गया, प्रमोशनल इवेंट्स में आपको हेल्प करते हैं, यहाँ पे B2B मीटिंग्स का जिक्र किया हुआ है कि ये कुछ यहाँ पे जैसे फी ऑर्गेनाइज करती है 5 स्टार होटल्स में, क्राउन प्लाजा हो गया, मैरियट में हो गया, दे हैव दिस डेलीगेट्स मीटिंग, दे हैव दिस बायर सेलर्स मीटिंग, और आपको वहाँ पे बुलाते हैं क्योंकि यू आर मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आप रूबरू होंगे कि वहाँ पे बायर्स कौन से हैं, या फिर गवर्नमेंट मशीनरीज के डेलीगेट्स आए हैं, एम्बेसीज के कुछ लोग आए हैं वहाँ की, तो वो सब का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, यू कैन मेक योर बिजनेस नेटवर्क थ्रू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, राइट। सो यहाँ पे ये सब आपको चीजें, ये देखो फीस यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये ट्रांसपेरेंटली बता दिया है कि अगर मेरा बिजनेस का टर्नओवर इज 0 to 5 CR, द फीस एप्लीकेबल वुड बी 11,800 इंक्लूडिंग GST फॉर 1 ईयर। कोई गुंजाइश नहीं है शक की कितना फीस होंगे, क्या होगा, इज ऑनलाइन अवेलेबल। DGFT की वेबसाइट में जाओगे, ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, आयुष में जाके यहाँ पे क्लिक करना है, 4-5 डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं। फर्स्ट इज योर IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, जो मैंडेटरी है, 500 रुपए में मिलता है DGFT से। सेकंड इज योर CA सर्टिफिकेट कि आपका पिछले साल का एक्सपोर्ट क्या था, सेकंड सर्टिफिकेट हो गया। थर्ड आपका MSME हो गया, चौथा आपका GST हो गया, और DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये 4-5 चीज लगा दी, आपने ऑनलाइन कर दिया, ये 4 दिन के अंदर आपको ही मिल जाएगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो हो सकता है शायद ऑडिट के लिए वो लोग आए, अदरवाइज मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो वहां पे ऑडिट नहीं होता है क्योंकि आपका कोई कारोबार या कारखाना नहीं है, तो आपको 4-5 वर्किंग डेज के अंदर ये सर्टिफिकेट मुहैया हो जाएगा। विद दिस यू विल बी एबल टू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज अब्रॉड। This institution is going to promote your products, your business बाहर के मुल्कों में, दी गवर्नमेंट मशीनरी, राइट। इसका और इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगा। इवेंट्स ये लोग करते रहते हैं, फॉर एन एग्जांपल आप देखें यहाँ पे 2024-25 का इवेंट्स है, तो ये इवेंट्स डोमेस्टिक हो गया, ये इवेंट इंटरनेशनल हो गया। अब देखो यहाँ से पता चलता है इंडोनेशिया में 6 से 7 सितंबर 2024 में भाई कुछ एग्जीबिशन ट्रेड फेयर लगा हुआ है। सो आप आयुष को कांटेक्ट करो, सर वी आर मेंबर, हम तो कल ही मेंबर बने थे सर, 11,800 पे की है सर, मुझे इंडोनेशिया जाना है, मुझे अपने प्रोडक्ट एग्जिबिट करना है, मुझे स्टॉल रखना है, बूथ रखना है, मैं सैंपल्स लेके जाऊंगा, सर्टिफिकेट FSSAI सर्टिफिकेट हो गया मेरा, आयुष का सर्टिफिकेट हो गया, सो आई एम रेडी फॉर एक्सपोर्ट्स। मुझे इंडोनेशिया जाना है, मुझे यहाँ पे बाकी इटली जाना है, सो मुझे भेजो वहां पे। आपका स्टॉल का भाव क्या है, तो बोले 2.5 लाख, लेकिन क्योंकि आप मेंबर हो सर आपके लिए इट इज 1.5 lakhs। कंसेशंस इज गिवन वंस यू आर मेंबर ऑफ दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, राइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। बाकी इनका सर्कुलर्स आते रहते हैं, इनकी रिसोर्स सेंटर में आप जाओगे, गवर्नमेंट स्कीम्स विच वी वोंट बी एबल टू डिस्कस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इनका रोड टैप का स्कीम होता है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस,
So I will show you the गवर्नमेंट का वेबसाइट, जो मैं हमेशा नॉर्मली हर सेशन में ये दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपका प्रोडक्ट अगर देखना है तो यहाँ से किस हिसाब से ये एक्सपोर्ट होता है. इट वर्क्स ऑन HSN कोड. मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव सीन दिस. अब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे एक अच्छी चीज इन लोगों ने आयुष में ये लिख दी है कि फॉर एन एग्जाम्पल प्रोडक्ट पैनस एंड HSN कोड. हम लोग ये ढूंढते रहते हैं, कभी कभी काफी ये दिक्कत आती है कि मेरे प्रोडक्ट ये हो गया, अंकित मेरे को ये नहीं पता मेरा HSN कोड कौन सा लगता है. 6 डिजिट 8 डिजिट जो हम लोग बात करते हैं नॉर्मली हर सेशन में, तो वो लगता क्या है. यहाँ पे HSN कोड दे दिए हो, यहाँ ये लो 30039011 आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, बायोकेम, आयुर्वेदिक, ये कितने हैं? 15 से 20 से ज्यादा है नहीं. इनकी वेबसाइट पे दिए हुआ है 19 HSN कोड. अब मेरे को फॉर एन एग्जांपल मुझे ये देखना है कि 30039011 का इंडिया से पिछले साल एक्सपोर्ट क्या हुआ. टोटल एक्सपोर्ट तो आपने मुझे बता दिया कि इतना हुआ है, करीबन 5,500 करोड़ या 5,000 करोड़. लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना हुआ है? तो दिस इज गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट मशीनरी का रन है. नो नीड टू लॉग इन. आपने यहाँ पे ईयर चेंज किया, यहाँ पे आपने इसको HSN कोड डाला एंड देन यू सबमिट दिस डेटा. ये देखिए रुपीज इन लैक्स, मेडिकेंट्स ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम, ये सब कंट्रीज दी हुई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे. सो देयर आर अराउंड 50-70 कंट्रीज. आई डोंट नो, वंस आई स्क्रॉल डाउन लेट मी सी. सो इट इज अराउंड मोर देन 100 कंट्रीज, राइट. ये देखो कितना गया है यहां से, इंडिया से 10346 लैक्स, मतलब 103 करोड़. इतने सारे प्रोडक्ट हैं. मैं खाली एक HSN कोड पकड़ के मैंने देखा तो इंडिया से इसी HSN कोड पे पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2024 में 103 करोड़ का मटेरियल यहां से गया है. कौन सी कंट्रीज में? 124 कंट्रीज में. आप अपनी कंट्री यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो. दिस इज गिवन, द HSN कोड इज गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ आयुष. उसको कॉपी करके आपको ये वेबसाइट पे डालना है. यू गेट द पोटेंशियल. क्या है, मैंने कौन सा मार्केट कैटर करना है, मैं कौन से कंट्री में फोकस करूंगा. 100 कंट्री 150 कंट्री तो है, मुझे फोकस करने, वो 10 तो बता दिए, नीचे 4 लिखे थे, फिलीपींस, वियतनाम वगैरह, वो 14 हो गए. इसके अलावा मेरे पास कुछ है कहीं पे मैं खेल सकता हूं गेम. दिस इज द आंसर. इजी, फाइन. लेट्स कम बैक टू अवर PPT. ओके, ये देखें मैंने यहाँ पे थोड़े एक फ्यू वेज बताएं हाउ यू फाइंड दी बाय यू कैन फाइंड चैनल पार्टनर्स, दैट इज डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. उसके बाद आप हेल्थ सप्लीमेंट स्टोर्स ढूंढना शुरू करो. वन ऑफ माय क्लाइंट इज डीलिंग इनटू न्यूट्रास्यूटिकल, उनकी खुद का यहाँ पे कारखाना है. तो मैं अभी यूए में वही ढूंढता हूँ, व्हाट ऑल आर दी ड्रग स्टोर्स एंड व्हाट ऑल आर दी हेल्थ सप्लीमेंट स्टोर्स. तो मेरे को गूगल से डेटा मिल जाता है. आई ट्राई टू गेट कनेक्टेड विद दोज पीपल बाय ईमेल, बाय माय इंट्रोडक्टरी मेल, बाय इनका कैटलॉग हो गया तो ई कैटलॉग भेजता रहता हूं. दिस हाउ यू स्टार्ट योर फर्स्ट टच पॉइंट इन दोज पर्टिकुलर मार्केट. अच्छा, ये 200 कंट्री में करना ही नहीं है, ये सिर्फ 14 कंट्री में ही करना है जो कंट्री दिए हुए यहाँ पे, राइट. दूसरा हो गया हेल्थ, हो गया डायरेक्ट सेलर्स ऑफ सप्लीमेंट, हो गए सुपरमार्केट्स, हो गए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हो गए जैसे लुलू है, या फिर आपका यूएई में काफी और कोई चेन्स है वहां पे, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनके बंडे ढूंढ सकते हो कहां पे है. Another tie up with the local people, white labeling and private labeling. जब भी आप फूड प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल ऐसे प्रोडक्ट बेचने जाओ तो ये जरूरी है कि ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब मिस साई सुधा की वेबसाइट देखो कि यू सी व्हाट काइंड ऑफ ब्रांडिंग, व्हाट काइंड ऑफ पैकेजिंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट का जो बाहर का जो विजुअल एस्थेटिक दिया हुआ है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल. तो आपको प्रोडक्ट देख के लगेगा यार मैंने ये प्रोडक्ट चाहिए. सो वो एक इंपैक्ट आएगा वंस यू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ ब्रांडिंग, राइट. लेबलिंग हो गया, आपका मार्किंग हो गया, दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट. वो वेबसाइट बनाना इंपॉर्टेंट. इनकी स्टोरी भी लिखी हुई है. सो यू स्टार्ट विद योर स्टोरी. यूएस, यूरोप में दे आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन क्या बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हो, दे आर इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी, व्हाई यू आर इनटू दिस बिजनेस. यू नो, वो बोलते हैं ना हमेशा कि पर्पस के साथ प्रॉफिट आएगा. पर्पस है तो प्रॉफिट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर पर्पस. दिस इज दे बिलीव, दे उनका ये एक फिक्रा है, राइट. सो सुपरमार्केट हो गया, टाइप्स हो गया. अभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा यूएस का एग्जांपल दिया है कि यूएस इस सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया से, करीबन इतना तादाद में जाता है, राइट, करोड़ ऑफ रुपीस में जाता है. सो यहाँ पे एक मैंने लिखा एग्जांपल कि एक योगा टीचर होता है, वो सिंगल सेशन का ही चार्जेस और शी चार्जेस $40 पर सेशन. They can be your influencers. अगर मुझे दवाइयां बेचनी है तो then doctors MBBS are my influencers. अगर मुझे फर्नीचर कहीं पे बेचना है तो आर्किटेक्ट्स आर द इन्फ्लुएंसर्स. मुझे सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट बेचने हैं तो जिम वाले बंदे या ऐसे योगा टीचर कैन बी माई इन्फ्लुएंसर्स. आई डोंट से कि बिजनेस इसी से होगा, बट देन प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली.
नाउ ये समझे कि ये कोर मार्केट अगर यूएस ने आपने पकड़ा तो देयर आर 1 लाख सर्टिफाइड योगा टीचर्स, या लिंक्डइन पे 5 से कनेक्ट कर लो यार, एटलीस्ट एक टच पॉइंट शुरू हो जाएगा तुम्हारा. And then you start giving them offers कि यार मुझे we are also ready to go with white labeling, private labeling, so we are open, can we do some tie-up, can we collaborate with the local distribution network kind of. Then this is how you take it forward, right? Okay. एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की बात मैडम ज़्यादा करेगी क्योंकि वो उस दौर से गुजरी हैं, वो रास्ते से वो मंजिल तक पहुंची हैं. बट देन ओके, हम लोग यहाँ पे मोटा मोटा रजिस्ट्रेशन जो कवर करते हैं दैट इज सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, लेबरिंग रिक्वायरमेंट रहता है, मार्किंग, पैकेजिंग रहता है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा. इट मे बी फ्रॉम द लोकल बॉडीज, इट कैन बी फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज, इट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम द थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी. जो हम लोग हमें नॉर्मली सेशन में बोलते हैं कि यूएस का कोई बंदा है, मिस्टर पीटर बोलता है नो वी डोंट वांट एनी गवर्नमेंट मशीनरीज, वी वांट दिस टू बी अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी लाइक एक्सजीएस हो गया, इंटरटेक हो गया, तो आप उसी से करा लो. आयुष तुम्हारे लिए है, अभी हम नहीं मानते, हो सकता है ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है. देन यू टू गेट दिस काइंड ऑफ गाइस कि यार इंटरनेशनल एजेंसीज कौन सी हैं ऐसी. सो वो इंस्पेक्शन हो गया. अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स इनकी क्या रहती है और ये कहां से मिलेगा? एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी, एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पैकेजिंग, एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, यू गेट इट फ्रॉम ओनली फ्रॉम 2 एजेंसीज. वन इज आयुष एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसकी वेबसाइट में दिखा चुका हूं, क्योंकि आप उसके मेंबर हो, उनकी जिम्मेदारी है आपको ये सब इंफॉर्मेशन देने की. नंबर 1. नंबर 2, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन एनी ऑफ द कंट्रीज. अगर 14 कंट्री आपका मार्केट है, 14 कंट्री के एम्बेसी को पकड़ो. इंडियन एम्बेसी यूएस वाशिंगटन, इंडियन एम्बेसी यूएई अबू धाबी कि सर हमको ये प्रोडक्ट बेचना है, ये प्रोडक्ट का HSN कोड इज 30041012 and the product name is this. So we would like to know what all are the mandatory requirements in your country for this kind of product, and they will reply with all steps, processes, कौन सी एजेंसी से लेना पड़ेगा, कैसे लोगे, कितना खर्चा होगा, कितना टाइम जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन. राइट. there are predominantly 2 kind of agencies. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट की बात की है. आई थिंक मिस साई सुधा वुड बी थ्रोइंग मोर लाइट ऑन दिस. एक COPP करके सर्टिफिकेट है जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से ताल्लुकात ऑलरेडी रखते हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी कर रहे हैं और उनको ये सेगमेंट में आना है. क्या मैं दवाइयाँ तो बेच रहा हूँ एलोपैथी की, मुझे आयुष और आयुर्वेदिक में भी आना है, तो देन COPP सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड बाय दिस पर्टिकुलर एजेंसी. एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एक GMP हो गया है जो आयुष आपको प्रोवाइड करके देगा. आयुष के आप मेंबर हो, वो आपको प्रोवाइड करके देगा. यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स है. वन इज आयुष स्टैंडर्ड एंड अनदर इज आयुष प्रीमियम. आयुष प्रीमियम हो गया तो आप पूरे जहां में कहीं पे भी उसको इजीली एक्सेप्टेंस है, उसका चार्जेस थोड़ा हाई रहेगा कंपेयर टू आयुष स्टैंडर्ड, तो लेकिन इट हेल्प्स इन अ लॉन्ग वे, लॉन्ग रन. So ये 2 उसके सिंबल है. दिस आयुष प्रीमियम एंड अनदर इज GMP सर्टिफिकेट विच इज यूरोपियन एंड मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस में GMP सर्टिफिकेट इज काइंड ऑफ मैंडेटरी. सो ये आयुष आपको मुआयना करेगा, वही आपको हेल्प करेगा ये 2 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशंस के लिए. सो दिस वॉज ऑल काइंड ऑफ कैसे रास्तों में कैसे जाना है, कहाँ पे बढ़ना है, कौन से मार्केट में जाना है, कौन से प्रोडक्ट में पोटेंशियल छुपा हुआ है. नाउ आई विल हैंड ओवर द डायस टू मिस साई सुधा. शी विल बी टॉकिंग अबाउट हर जर्नी, हाउ शी वेंट एंड कैसे ऑब्स्टेकल्स उन्होंने ओवरकम किए. राइट. थैंक्स. थैंक यू. नमस्ते. बोर हो रहे हैं या ठीक है? ठीक है, ओके. मेरा नाम याद है सभी को? मैम नहीं है, मेरा नाम साई सुधा है. मैं आंध्रा से हूँ. हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज आई विल स्लिप इनटू इंग्लिश. कुछ आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ बताइए, और कुछ मेरा ग्रामर का मिस्टेक्स है तो प्लीज़ एक्सेप्ट. जैसे अभी तक अंकित जी ने कहा है, आयुर्वेद हर्बल इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी मार्केट स्पेस तो है एक्सपोर्ट में, मगर इतना आसान नहीं है जितना यहाँ हम सुन रहे हैं. एक्चुअली हम इफ़ यू वांट टू गेट आवर हैंड्स डर्टी देन बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन का नाम है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सपोर्ट्स में. दैट इज़ व्हाट आवर एक्सपीरियंस इज़.
वी आर इन द 4th ईयर ऑफ आवर एंटरप्राइज, बेसिकली 3 साल हुआ है. एंड देन जब हम सोच रहे थे कि कैसे करें, क्या करें, इंडियन मार्केट करें या आउटसाइड करें, क्योंकि आउटसाइड तो बहुत टेम्पटिंग लगता है फिगर्स को देखकर, मगर क्या इतना आसान है? नहीं है. और क्यों नहीं है? अगर आपको सीधा हल्दी भेजना है या मतलब जो भी अनप्रोसेस्ड हर्ब है, अश्वगंधा, गिलोई, कुछ भी ऐसे हम लेके सेमी प्रोसेस में या जस्ट रॉ हर्ब एक्सपोर्ट करने में इतने सारे इश्यूज नहीं आएंगे, जबकि वहाँ पर मार्केट उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं है इन कंपैरिजन टू अगर आप प्रोसेस करें. जैसे हम तो हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट्स में हैं और कॉस्मेस्यूटिकल्स में हैं. एक्चुअली थैंक्स टू अंकित जी वो शब्द मैंने आज नया सीखा है. अदरवाइज वी कॉल इट एज हर्बल एप्लीकेशंस, क्योंकि एक्चुअली कॉस्मेटिक नहीं है, बट इट ऑल्सो वर्क्स एट द सुपरफिशियल लेवल ऑन द स्किन और हेयर, बट इवन इट अंदर से भी हमें हील करता है, सो दैट दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए. तो या सो कॉस्मेटिक्यूटिकल्स ये प्रोसेसिंग अगर करें, देर इज़ ह्यूज डिमांड एंड ह्यूज मार्केट एंड यू विल विन वेरी इजीली वो मार्केट, क्योंकि कोई नहीं कर रहे हैं. चाइना और इंडिया में यही फ़र्क है. एंड जब हमने शुरू किया था जानने के लिए, तो हमारा इंक्यूबेटर कोई थे, तो उन्होंने ट्रेनिंग में बताया एम्बेसी में जाके आप उनको आपका HSN कोड भेजिए, तो वो पूरा लिस्ट बायर्स का दे देंगे. एक दिन में आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैंने US के किया था, वो आ गया भी था. देन आई कॉन्टैक्टेड अ कंसल्टेंट कि हमें ऐसे एक्सपोर्ट करनी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. देन द गेम स्टार्टेड कि क्या है आपका प्रोडक्ट. तो मैंने कहा ये दोनों है. तो उन्होंने कहा कि हेल्थ सप्लीमेंट्स अभी टच मत कीजिए बिकॉज दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और आपको कहाँ पर पहले आप सोचिए कि कहाँ पर करनी है एक्सपोर्ट. तो हमारा कस्टमर्स ऑलरेडी US में हैं बहुत सारे. आई विल कम टू दैट स्टोरी, लाइक कैसे हमने वहाँ पर कस्टमर्स को लिए हैं, दो हम सर्टिफाइड मतलब कमर्शियली वहाँ पर हम सेल नहीं कर रहे हैं, वो अलग जर्नी है, जस्ट टू टेस्ट द मार्केट. बट या सो उन्होंने पूछा तो मैंने US कहा, तो उन्होंने कहा US, यूरोप, सऊदी, ये सारा कंट्रीज़ में बहुत चलता है, बट US इज़ ओके, बट यूरोप एंड सऊदी दे आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट सर्टिफिकेशंस देयर, क्योंकि IEC सर्टिफिकेट होने से नहीं होता है. एक एग्जांपल है, उनको ऑरिजिन ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा फार्मर से आपने ख़रीदा है और आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, वो तो हम दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, रजिस्टर्ड है, वो सब है. बट रॉ मटेरियल जब प्रोक्योरमेंट की बात आती है, अगर हम लोग ट्रेडर से लेते हैं तो सर्टिफिकेशन अब भूल सकते हैं हम. तो हमें लगा ठीक है ये तो, क्योंकि चांसेस इतना हाई होता है जस्ट फॉर देम टू वेरीफाई वेदर वी आर सेइंग वॉट एवर वी आर सेइंग इज़ करेक्ट. वो फार्मर तक ऐसे डिटेल्स देना है कि फार्मर का फ़ोन नंबर्स भी मांगते हैं कभी कभी. तो वहाँ तक वो वेरीफाई करते हैं कि हमने जो डेटा वहाँ प्रोवाइड किया वो सही है कि नहीं, और फार्मर हाँ बोलेगा, देन दैट सर्टिफिकेट कम्स टू अस. सो ये वेरी एक्चुअली इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन अगर हर्बल इंडस्ट्री में नहीं है, जबकि आजकल अगर मैन्युफैक्चरिंग में देते हैं, हमारा प्रोसेसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, वी हैव डाइल्यूटेड. आयुर्वेदिक टेक्स्ट कुछ कहते हैं, हम और कुछ करते हैं, तो ये जर्नी ऐसा होता है. सो बट इंडस्ट्री वाइज, एक्सपोर्ट वाइज वेरी गुड टू गो herbal supplements and cosmeceuticals as well as cosmetics. और तो हमने वो शुरू किया था, तो ठीक है हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई हम पहले ठीक करेंगे, दैट इज़ व्हाट वी हैव डिसाइडेड. तो हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई हमने ठीक किया है. सो ये मैं 4 साल की जर्नी बता रही हूँ, जबकि मतलब जब बिल्वम हर्बल स्टार्ट हुआ तब से ये जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ कि एक्सपोर्ट कैसे करें.
एंड देन उसके बाद ये पता चला कि जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, उसका भी आयुष सर्टिफाइड लेबोरेटरीज़ हैं. एक्चुअली गुजरात में 2 ही हैं. आई थिंक ओनली 1 इज़ फंक्शनल एज ऑन डेट, वो जो अहमदाबाद में है. तो वहाँ पर नॉर्मली इंडिया में क्या करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट का हम हर बैच को टेस्ट करने के लिए भेजना, दैट इज़ देयर इन इंडिया. मगर रॉ मटेरियल टेस्ट का इंडियन मार्केट के लिए नहीं है. वेर इन इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल हर एक इंग्रेडिएंट का टेस्ट करनी पड़ेगी. बैक्टीरिया, फंगस एंड देन मेटालिक प्रेजेंस, जितना उनका जो भी पैरामीटर्स है वो सारा में हमें टेस्ट करना पड़ेगा. उसके बाद हमारा मान लीजिए कुछ इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट है, मतलब वर्क इन प्रोसेस कुछ है, मतलब एक चूर्णा हो गया, वो एक इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट है, उसको कैप्सूल बना रहे हैं. जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. सो द पाउडर ऑल्सो इफ़ यू आर मेकिंग, देन वो पाउडर का भी टेस्ट करना पड़ेगा. फाइनली अगर टैबलेट या कैप्सूल या कषायम या अरिष्टम कुछ भी आप बनाते हो, तेल बनाते हो, तैलम, तो ये उसका भी हमें करना पड़ेगा. तो 3 levels ऑफ टेस्ट दे वुड नीड अलॉन्ग विद द ऑरिजिन नेटिव वो सर्टिफिकेट. ये दूसरी ये है. IAC सर्टिफिकेट इज़ वेरी इजी, एज अंकित जी सेड, इट इज़ जस्ट 2 days वर्क, बहुत कम पैसे में. बट ऑल दिस एंड देन हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वो हाइजीन सर्टिफिकेट जो होता है, वो दैट इज़ वेरी वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट. हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सही होना चाहिए, बिकॉज दे विल कम फॉर इंस्पेक्शन. वीडियो कॉल भी होगा एंड देन फिजिकली दे विल कम एंड देन दे विल सी आवर प्रीमाइसेस, हम कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, वो सब है. अभी एक नया गाइडलाइन भी आया है, WHO गाइडलाइंस. यूजुअली एलोपैथी ड्रग्स जो बनाते हैं, इट इज़ डिज़ाइन फॉर देम, बट अभी कुछ आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं कि उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी वैसे ही हो जैसे WHO गाइडलाइंस किया है. उससे क्या बेनिफिट है कि हमें तुरंत आसान से वो जो सर्टिफिकेट ऑफ हाइजीन का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा. बट देन हमें बहुत पैसे लगेंगे उसमें, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे, वो कब करेंगे. सो दीज आर ऑल द थिंग्स, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. तो ये सारा प्रोसेसेस है. ठीक है, हमने कर दिया है. मगर जब हम हर्बल सप्लीमेंट्स और कॉस्मेस्यूटिकल्स ये दोनों बात करेंगे, तो वहाँ पर बायर्स, मान लीजिए हेल्थ कोच, जैसे अंकित जी बोल रहे हैं, योगा कोच हो गया, या हेल्थ कोचेस वहाँ पर बहुत पॉपुलर हैं. हेल्थ कोच डॉक्टर्स नहीं हैं वो, बट वेलनेस कोचेस होंगे वो. तो मैंने एक्चुअली 1-2 लोगों के साथ बात भी किया था, मेरा रेफरेंस से मैंने उनको कांटेक्ट किया. कैन यू नो ऑल्सो एडवाइज आवर प्रोडक्ट्स. सो उनके लिए क्या है कि सर्टिफिकेट्स एक है, मगर वहाँ पर उनका सिस्टम ऐसा है कि कुछ क्लिनिकल डेटा होना चाहिए साथ साथ. एक तो ये लीगली जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो एक बात है, मगर दूसरा इजी टू गेट योर पार्टनर्स देयर, प्रमोटिंग पार्टनर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स. डेफिनेटली दे लुक फॉर सम काइंड ऑफ एन एविडेंस कि वो जो हम क्लेम कर रहे हैं हेल्थ बेनिफिट, तो वो है कि नहीं. सो दे वुड लाइक टू सी सम काइंड ऑफ अ फॉर्मल क्लिनिकल डेटा, रिसर्च हो उसके ऊपर, और वो रिजल्ट्स सही हो हमारा, एंड देन दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स दे लुक एट. सो ये सारे प्रोसेसेस टाइम लगेंगे, क्योंकि क्लिनिकल डेटा यूजुअली 1 it takes fund, 2 you need to collaborate with either a university or a research organization which is approved by government of India, and then go and conduct your clinical trials. वो clinical trial होने के बाद based on the results you have to bring out a paper. तो ये पेपर पब्लिश होने से क्या है कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं वहाँ बेचने का, बट ये डेटा अगर आपके पास है कि यस हम जो क्लेम कर रहे हैं वो होगा ही होगा, देन हेल्थ कोच हो या योगा कोच हो या कोई भी वहाँ पर शॉप्स हैं, दे विल बी ईजीली टेकिंग योर प्रोडक्ट. उनको पार्टनरशिप करने में तब उनको दिक्कत नहीं होगी.
क्योंकि शॉप्स वाले नहीं पूछेंगे मगर खाली शेल्फ स्पेस दे देंगे वहाँ पर, मगर वो शेल्फ स्पेस से कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वहीं पर हमारा प्रोडक्ट्स पड़े रहेंगे, हमारा यहाँ एक्सपेंस हो जाएगा मगर कुछ वहाँ से कुछ नहीं आएगा. सो बेटर इज़ go prepared when you want to go into the herbal supplements and cosmetics market, export market. तो हमारा ये तो अभी भी हमारा जर्नी चालू है, धीरे 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 एक स्टेप कर रहे हैं. बट पर्सनल जर्नी हमारा ऐसा शुरू हुआ कि हम इंडिया में जब प्रमोट कर रहे हैं और कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ हमने वीडियोस किए हैं, और मैं आंध्रा से हूँ, आई एम जस्ट गिव दैट इज़ व्हाट इट हैज़ हैपेंड. तो जब मैंने तेलुगु एक यूट्यूबर को कांटेक्ट किया, हमने इंटरव्यू दिया, बट दैट वाज इंडियन मार्केट के लिए किया था. बट बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन ओवर देयर, साउथ इंडियन पॉपुलेशन एंड देन तेलुगु पॉपुलेशन इन US. तो उन्होंने क्या है कि वो वीडियो देखकर दे हैव कॉन्टैक्टेड अस. सो राइट नाउ वी हैव अबाउट 100+ कस्टमर्स इन US. तो मगर डील ये है कि हम उनको क्लियरली बताते हैं कि हम आपको कमर्शियली लाइक सर्टिफिकेट्स के साथ अमेज़ॉन में वो सब हम नहीं कर पाएंगे. सो वी सेंड इट फ्रॉम हियर टू देम. या उनका रिलेटिव्स जैसे ऑयल, वो अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो पर्सनल लेवल पे हम ऑयल्स भेज नहीं सकते हैं, घी एंड हनी एंड ऑल सब कुछ चला जाएगा. तो देन ऑयल्स अगर हमारा मेडिकेटेड ऑयल्स जो है वो चाहिए तो उनका रिलेटिव्स यहाँ आते हैं. बट हमारे लिए अगर टोटल टर्नओवर में देखेंगे, हमारा अभी फ़िलहाल अराउंड 2200+ कस्टमर्स हैं, उसमें 1/3 आर फ्रॉम US. एंड टर्नओवर अगर देखेंगे ऑलमोस्ट लाइक 40% टर्नओवर इज़ फ्रॉम दैट मार्केट. तो इतना ही नहीं है, इवन आर कस्टमर्स ओवर देयर वो बोलते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट्स जैसे आप इंडिया में सेल कर रहे हो, हम पर्सनल लेवल पे वहाँ पर हमारा ग्रुप्स होंगे, वी विल सेल. सो जस्ट टू स्टार्ट टेस्ट द मार्केट्स, वो एक बहुत ही अच्छी स्टेप होगी कि ये सारा करने से पहले हमारा प्रोडक्ट्स वहाँ चलेंगे कि नहीं देखना पड़ेगा. Why I'm saying is we have under cosmeceuticals herbal bathing powders हैं, they're very good and those are one of our hero products I would say. So वहाँ पर क्या है कि उनका खुद का वॉशरूम वही they have to clean, right, unlike in India. तो बेदिंग पाउडर है तो वो गंदा होगा, वो कैसे करेंगे, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्लॉग नहीं होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस उनके पास रहते हैं. एंड देन बिलीव मी बेदिंग पाउडर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो एक हमने टेस्ट किया था, क्योंकि गोवा में एक एग्जीबिशन हुआ था आयुष का, वेर इन वी हैव पार्टिसिपेटेड. तो वहाँ जो फॉरेनर्स आए थे हमारा बेदिंग पाउडर्स जब देख रहे थे, उनका वो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि वो देखने के लिए अच्छा है, आपका इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, मगर वो हमारा लिए वहाँ पर वॉशरूम में कुछ दिक्कत ना हो करके, दैट इज़ वन ऑब्जर्वेशन दे हैड टोल्ड अस. तो ये छोटे छोटे फीडबैक्स अगर हम पहले ही लें और ऐसे पर्सनल लेवल पे वहाँ भेजें, और वहाँ पर कैसे वो चल रहा है हमारा प्रोडक्ट, आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, ले लेंगे, बिकॉज यू आर देयर रिलेटिव, सो दे वुड लाइक टू एनकरेज यू, इसीलिए ले लें. मगर उनका दोस्त, उनका सर्कल में अगर वर्ड टू माउथ वहाँ स्प्रेड हो रहा है, देन यू डेफिनेटली गो एंड गेट योर सर्टिफिकेट्स, इवन इफ इट मीन्स टाइम, इवन इफ इट मीन्स मोर मनी टू स्पेंड. तो ये रहा मेरा जर्नी. मैं प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए भी बहुत क्रिटिकल है, इवन फॉर बिल्वम. थैंक्स अंकित जी, बहुत हेल्पफुल रहा है. तो बट आई फेल्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रेजेंटेशन, मेरा पर्सनल जर्नी मैं एक्सप्लेन ऐसे करूँ तो सही रहेगा. एनी क्वेश्चंस देन आई कैन टेक, अदरवाइज. Ankit bhai, as in usual style, he gave us so much data, and including the live net connection. Yeah, that is his typical style. In fact, for me also revelation, such kind of data, I mean, herbal and Ayurveda, they are not easy to get. Okay. And he is a person to contact for any such kind of activity.
And madam, you really, this was a real experience sharing. That's what we wanted to do. No, she actually told how one has to go through it. She is right. No, as compared to allopathy, one of the major issue in Ayurvedic is that it's a natural thing. Every time the raw material may be different. That's a nature. And that's why it requires testing before converting into final product. So that difficulty always is there. So getting the procurement of the raw material for Ayurvedic or herbal or such kind of product, it starts with that. But there are ways to do it. If you want to do it, it can be done. But that we have to be conscious about it. So her experience sharing was fantastic. I am so happy that you got so many customers and you are exporting. So nice. In fact, we would like to visit your unit. Say yes. Thank you. Thank you. No, actually, no, what happens is from Ahmedabad Management Association, I am a chairman of a committee. We organize industrial visits, about 8 to 10 visits in a year. Okay. So we always look forward to some kind of unit which are different, which gives a different kind of perspective, of course, with new acceptance and consent by the unit, that kind of. So this is okay. The forum is open. We can take couple of questions. Yes. Yeah, you please. અજય ભાઈ, તમારો ક્વેશ્ચન કોને માટે છે જરા જણાવજો અને ક્વેશ્ચન્સ ટૂંકાણમાં સંક્ષિપ્ત રાખજો એટલે શું એનો ટાઈમ મળે. So good evening and thank you panel for the wonderful information. So my question is for you, Sai Sudha ma'am. From a merchant exporter's point of view, is there a potential to enter the market? Because from what you said, I am gathering is there is a too much investment as far as the certifications and everything is concerned. And if it is not possible for a merchant exporter to enter into these products, what is the potential for sourcing it from a company like you and selling it here in India itself? Thank you. हाँ, ओके. तो इंडिया में वैसे ही yes, it is there's lot of potential if you're following the practices. But from merchant point of view, if you have all these certifications and your unit is good, there is immense satisfaction from the merchant point of view, क्योंकि they will take the supplements there and they'll market with lot of confidence. So just doing the hard work and investing more will surely result, क्योंकि वही नहीं है, herbal supplements वहाँ नहीं है और वहाँ कॉस्मेटिक्स नहीं है, हर्बल बेस्ड कॉस्मेटिक्स तो बिल्कुल नहीं है. चाइना में इतना सारा एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है और हमारा क्यों नहीं हो रहा है? इट्स ओनली दैट द प्रोसेसिंग पार्ट. हम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं प्रोसेसिंग, यही है. बट मर्चेंट्स आर जस्ट वेटिंग फॉर सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया. Thank you. Ankit bhai, you like to add something? So उनका जो क्वेश्चन था मर्चेंट एक्सपोर्टर्स कहाँ पे स्कोप है, काइंड ऑफ दैट वाज द आइडिया. सो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हर मार्केट में मुमकिन नहीं है कि रीच कर सकें. सो यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स कम इनटू पिक्चर, जहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट कम रहेगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस, क्योंकि सर्टिफिकेशंस मैन्युफैक्चरर्स का ही वैलिड रहेगा. You are just an intermediate who is just bridging the gap between the manufacturer and the end user. तो वहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर्स का रोल बड़े पैमाने पे हो जाता है कि आपका फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है, रॉ मटेरियल पे नहीं है, प्रोसेसिंग पे नहीं है. योर फोकस इज ओनली ऑन मार्केट्स एंड लेटर शी फोकस ऑन द अदर एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल. तो यहाँ पे इट इज मोर ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री चीज रादर देन कॉम्पिटिटिव. तो ये वो एक चीज़ हो सकती है काइंड ऑफ. Thank you. I had a technical query, small. Why can't our government of India establish clinical norms, clinical trial norms? Why can't they specify this product has this technical norms, and if it is within that, it is good for export? Why we have to individually work on it and spend our money and time? Already norms हैं. Norms are there. Yeah. Then why we are struggling for export? No, Or but our norms are not established there abroad? No, it is about the practice.
How much we are following the norms? Norms are set by the government on how to do a Norms are there, clinical. but our norms are not acceptable there, ma'am. No, they are acceptable there. Accordingly, the norms are set. But how many of us are actually following it and doing the clinical trials and then getting them approved under the regulatory authority of clinical Ma'am, trials in what India? I could understood, Yeah. you are not able to do organized sales there Huh. in US market, Yes. and your focus is on individual sales. Yes. Then where our norms are working? No, that is because we haven't actually fulfilled, we have not completed a clinical trials. We have Why actually. we have to? Individually, why we have to? No, that is because as a manufacturer, I have a different formulation. Unless and until it is classical Ayurvedic formulation. But if it is classical Ayurvedic formulation, then they will see how your process is, manufacturing practices, and then you can sell it in the market. But if it is ours is a proprietary formulation, Ma'am, then I have to my establish. my humble question is, see, we have standard norms, Yeah. and we are working within standard norms. It should be acceptable everywhere. This one should be our focus. Why we have to practically spend our money and time on each and every process? नहीं એટલે Then how are we growing our export in that? नहीं वो केस में नॉर्म्स आते हैं स्टैंडर्ड्स आते हैं द ओनली थिंग इज कि उनकी जो स्क्रूटिनी है वो इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर्स पे इसलिए क्योंकि वी आर नॉट परहैप्स एडहरिंग टू दीज नॉर्म स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब फॉर एन एग्जांपल स्पाइसेस का वी ऑल नो क्या हो रहा है अभी एमडीएच एवरेस्ट की वजह से एक छोटा सा एक टॉलरेंस लिमिट क्रॉस कर दिया इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस हैज गॉन डाउन बाय नो मोर देन 20%. सो अभी ये सब अलार्म हो गया है ना हांगकॉन्ग इस पीछे पड़ गया सिंगापुर इस पीछे पड़ गया यूएस यूरोप तो लगा वो पीछे है कि ये क्या हो रहा है. सो ये लोग अभी फॉरेन जो बायर्स है उनका ये एक मानना है कि यार ये इंडिविजुअल नॉर्म्स बना दिए बट एन इज एवरी मैन्युफैक्चरर इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी आर फॉलोइंग दोज नॉर्म्स. अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है. सो इसकी करेक्ट सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड. No, those certificates are accepted, but for export they are actually not taken very seriously. That all depends on exporters कि how they are going to adhere to these norms, how they are going to make product with finis and then perhaps export rightly in those markets. वो हम पे जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है. गवर्नमेंट ने मशीनरीज करा दी, चीज़ें अवेयरनेस प्रोग्राम करा दिए, लेबोरेटरीज मुआयना करा दी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं एट ग्राउंड लेवल. मैक्रो लेवल पे चीज़ें चल रही है, गवर्नमेंट मशीनरीज अपना काम कर रही है, बट आर वी कमिंग आउट ऑफ अवर दिस थिंग एंड मेकिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट. सो द क्वेश्चन मार्क इज दिस. इफ यस देन देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल. अगर वो नहीं है, कहीं पे कुछ है पैकेजिंग के लेके मार्किंग के लेके कुछ कहीं पे हम लोग माइनस में चल रहे हैं, सो ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा उस पर. लाइक सिंपल एग्जांपल है इंग्रेडिएंट्स. जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे अगर आप लेबल्स पढ़ेंगे वो सब हम मेंशन ही नहीं करते हैं. क्या क्या बहुत सारे छुपा देते हैं. एक तो वो प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या, दूसरा हम केमिकल्स डाल रहे हैं प्रिजर्वेटिव्स और फ्रेग्रेंसेस कलर्स के नाम पे, वो नहीं दिखना है करके हम नहीं बताते हैं. सो द एक्सपोर्ट मार्केट द वेरी स्कैर्ड importing from India actually. उनका जो विश्वास है हमारा क्वालिटी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कम, मतलब वेरी लेस. तो इसीलिए हमारा जो सर्टिफिकेशंस यहाँ जो ले रहे हैं विद इन इंडिया सेल के लिए वो वहाँ पर काफ़ी नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर नॉट अप टू देयर स्टैंडर्ड्स. One last question, if anybody has. Yeah, please. So sir, my question is to you. Basically, I have both Ayurvedic and Nutra plants, WHO approved, US FDA approved, Nutra. But in also I am exporting to almost 14 to 15 countries. Not ones you said, but different. Some of them are common. Great. But all through merchant exporters, not directly. Directly. Okay. I have spent almost, I would say, a huge amount of money for just one product in US, which was a liquid. So and I'm not been recovering that money in any way. So what would be a way where I can export to US or some other European markets without spending that much of a money? Because as ma'am said, I have spent a lot of money in clinical trials, toxicity study, heavy metal test, all that stuff. नहीं, your products are already going through the channels, so you are already going through merchant exporters से तो हो ही रहा है वो. Yes. तो डायरेक्टली करना है.
So directly, are you investing something in your branding kind of activities? वेबसाइट के जरिए डिजिटल मार्केटिंग पे कुछ कर रहे हो, यूएस में ऐसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हो जो इन्फ्लुएंसर्स से जुड़े हुए हैं. अगर वो रास्ता सही है तो यूएस ऑलवेज वर्क ऑन दोस पोर्टल्स, डिजिटल या इन्फ्लुएंसर्स अगर उसको टच कर लिया. आर यू गोइंग टू अटेंड एनी ट्रेड फॉर एग्जीबिशंस काइंड ऑफ, वहाँ पे कुछ कर रहे हो? तो ये 4-5 तरीके हैं जहाँ से आपको बायस का इंटरेक्शन ज़्यादा हो सकता है. जस्ट व्हाट आई बिलीव. इसमें से ट्रायल एंड एरर, आपका बजटरी कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से 4-5 में से कौन सा वर्कआउट होगा, दैट इज मेनली इंपॉर्टेंट. बट फॉर मी, नॉट ओनली टू यू बट द ग्रुप एज वेल, डिजिटल मार्केटिंग एक समझे एक चीज़ को, एसईओ, गूगल एडवर्ड तुमने कर लिया, इट इज बेसिकली ए सप्लीमेंट, जो मैं मानता हूँ. मेन कोर इज आर यू मेकिंग एनी विजिट, आर यू मीटिंग दोज पर्सन्स, दोज इंपोर्टर्स, दोज होलसेलर्स, दो डीलर्स इन पर्सन, कहीं पे विजिट कर रहे हो? अगर विजिट कर रहे हो, डेट कैन बी ए गेम चेंजिंग फॉर यू. वो चालू कर दो, कहीं पे मिलना शुरू कर दो, लोगों से राब्ता करो, सैंपल्स लेके जाओ, सर्टिफिकेशंस लेके जाओ, अपॉइंटमेंट लेके जाओ, 10-15 लोगों को मिल के आओ, आपका कॉस्ट कवर 1 साल के अंदर 100% हो जाएगा. एक प्रैक्टिकल तजुर्बा है, irrespective of the products. Thank you. Right, thank you both of you, and thank you also for raising the very meaningful questions. We had an excellent session. As I said, there is a right kind of combo. Okay, he gave everything related to export, and he has a lot of things he's up his sleeve. Kelal jadugar jeva hai, jadu kar se. But idea is to see that we increase our exports. We want to increase the exports of herbal products. That is the basic theme, and we are on the right path, and we'll continue in this field working on it. I would just like to add a couple of things. One thing, madam, you were saying about the testing of the Ayush products. There is a company called Acupec Research in Changodar, in Gujarat, and maybe in India. It is one of the best company approved by Ayush. It has so many approvals. In fact, it got a US FDA approval also. But for Ayush, it is one of the. There could be others also, but this is Acupec Research. It is on Changodar. It's once you should visit that. It's one of the best laboratories. Started by just like you. There is a lady entrepreneur, Dr. Reena Gokanis, she has started it. So there is one thing. There is another thing we should know about it. Sometimes we undermine the good work done by government. Government of India has come out with an excellent database of herbal products. Okay, what is called TKDL, Traditional Knowledge Digital Library. More than 2 lakh entries have already been made in that digital library. What is that? What our plants, herbals, medicinal plants are being cultivated, growing in India, whether in this part, northeast, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, whatever may be, they have entered it. The name of the product, the local name, English name, botanical name, and 1-page information, maybe 2-page information about what the plant is, how it is useful, what can be done out of this, why they have done it, because this kind of natural remedies should not be patented, not monopolized, because it is for everybody. This is excellent database. I have been part of this panel when it was being done at the Government of India. So there are some very good things, and it is like an ocean. It's like અંકિતભાઈ કીધું કે આપણો 2 કે 5% શેર છે અને ચાઇનાનો 15% કે 13% શેર છે. કોઈ ચાઇનીઝ નથી ને આમાં, જરા વિશ્વાસુ નથી એ લોકો, પણ they are ahead. અમે ચાઇના ગયા હતા ગુજરાત અમારી તરફથી, તો વી આર ટોલ્ડ કે તમને એક મોટી ફાર્મા કંપનીની વિઝિટ કરવામાં આવશે. અમે ગયા તો વી આર વન્ડરફુલ. થોડી વાર પછી ખબર પડી કે આ તો હર્બલ પ્રોડક્ટની કંપની, આ ઝાયડસ જેવી મોટી કંપની, સન જેવી મોટી કંપની. That's the difference, my dear friend. We will do it. We are a little bit behind, but we are going to make it. So once again, thank you both of you, the speakers, and all the people. We had an excellent session. Keep coming to Ahmedabad Management Association, and feedback form you must have given, I'm sure. Do give your feedback. We like to keep on improving ourselves. Thank you all. Okay, fine.